Rajneesh, both are extremely dear friends of mine. Ranju and I started off our careers practically at the same time. I was an assistant director while Ranju was an assistant director as well. He was an assistant choreographer. So I've seen him grow, and he's grown into a beautiful director. He's executed the entire album very well. It's very difficult to go out there and visualize something like this and have it executed on VFX, and it's not easy a job. And he's done it beautifully. The whole concept was really nice. Ranju and his wife Kadambari have done excellent, execution as far as VFX is concerned. Also, Rajneesh is looking amazing as always. He's one of the finest looking people I know, and also he's such a nice man that it automatically he starts looking even better. And I think Renu, all of them have done a fabulous job. Technically, it's brilliant. I loved the singing in the album. The voice is beautiful, and for me, this song is going to be stuck in my head for a while now. Yeah. Neil, what you have done in Golmaal series, everyone loved it. Thank you. It's a blockbuster. Thank you. Do you think there are possibility in be doing, the negative shade which you have played in, and how is the experience working with the entire team? The team was amazing. I'm very overwhelmed of the fact that the film's doing so well. It's connected so beautifully. It was a little bit of a gamble from my side as an actor to go out there and again try something different, and especially in a genre that either you're accepted or rejected instantly. But the dual personality of the character was so interesting for an actor. I just didn't want to leave it. He comes across as this very simple, nice boy who falls in love with Pari's character and then suddenly turns the evil monster out there. But I think it was overall an experience. No one in their right senses would say no to a Golmaal series. No one would want to miss out the opportunity of working with Mr. Rohit Shetty. So I'm really proud and really honored that I've got the opportunity of working with such a beautiful star cast, from Rohit sir to Ajay sir, Pari, all the boys, Arshad, Kunal, Shreyas. They've been fabulous, all of them. Tushar. So overall, I'm extremely happy of the film. Yeah. सर आजकल ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा दौर चल रहा है कि जहां एक्टर अगर ये डर के अगर बैठ जाए और ये दिमाग में अपनी ठान ले कि अगर मैं नेगेटिव हूँ या पॉजिटिव, मेरा मानना है कि आज का समय ऐसा है कि आप कैरेक्टर्स के ऊपर फिल्में बना रहे हैं। और ज़्यादातर जो हम देख रहे हैं, जितनी भी हम एंसेम्बल कास्ट फिल्में देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत सारे शेड्स कर रहे हैं। हाल ही में आपने एक विलेन अगर देखी होगी तो उसमें रितेश देशमुख जी, जो कि कॉमेडी इतनी बेहतरीन करते हैं, उसमें एक विलेन के किरदार में उन्होंने निभाया था। मेरा खुद का पर्सनली मानना है कि इन टुडेज टाइम देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अ हीरो एंड अ विलेन। और पहली बात तो बिना विलेन के हीरो है ही नहीं, तो अगर करना है तो वो भी स्टाइलिशली अच्छे से करिए। तो आई थिंक जितनी भी कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेहनत के साथ, लगन के साथ करूँ काम। ओके, गोलमाल का हिस्सा बनना, जैसे आपने कहा या तो पब्लिक कबूल करेगी या रिजेक्ट करेगी। जी। इट वाज अ रिस्क, are you apprehensive while signing the film, or the moment he ready to? Not at all. I've been taking risks from the first film of my career. 10 साल हो गए आप लोगों के साथ। 10 साल से मैं रिस्क ही लिए जा रहा हूँ। जॉनी गद्दार हो, सात खून माफ हो, डेविड हो, जो भी फिल्म हो, आप अगर देखें बहुत सारे रिस्क हैं। हाल ही में आपके सामने हिंदू सरकार आई थी, वो भी एक किस्म से एक चैलेंज है, एक रिस्क है। माफ़ करना, वो मेरा ही हाथ लगे जा रहा है आपके वायर पे। बट तो बिना रिस्क के कोई फल मिलेगा ही नहीं। और आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर एन एक्टर टू जस्ट गो एंड चैलेंज हिमसेल्फ आउट देयर and go and try and achieve something and carve a niche for himself. I'm trying to do that, that's all. The last one, would you be interested in doing a comedy part? Oh, lovely. I would love to do I 100%. I'm very good with that. Nobody has tapped that side. So slowly, one shade at a time. I love to do a comedy film also. With Rohit, Golmaal of course, I love to be a part of that family for all my life. That's such a beautiful family. उनका परिवार इतना स्ट्रॉन्ग है, सारे उनके टेक्नीशियंस, उनकी पूरी टीम एक परिवार का हिस्सा बना लेते हैं आप लोग को। तो मैं इतना ज़्यादा ही प्रभावित हूँ, इतना खुश हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके परिवार का एक हिस्सा बन सका। आई एम वेरी हैप्पी, और मैं चाहूँगा कि वो हमेशा मुझे
परिवार का हिस्सा बनाए रखे हैं। Neil, any upcoming project you would like to share? I'm working on Saho right now with Prabhas. So Saho's shoot has started. We've been filming for the last 1 month now. Action is starting big time now. So looking forward to that. It's going to go on for quite some time. And Bahubali, Prabhas is amazing. Shraddha is fabulous. It's a very difficult subject because at the same time we're speaking in 3 languages, Telugu, Tamil and Hindi. तो हर शॉट के बाद चेंज करके जो है हमें नया एक स्क्रिप्ट मिल जाता है जो हमें बोलना पड़ता है, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कैरेक्टर किस तरह का होने वाला है? मैं माफ़ करना वो मैं बता नहीं पाऊंगा, आप साहो के टीज़र का इंतज़ार करिएगा। थैंक यू। आज तक आया मेरे सारे सुपर हिट रहे हैं और ये आप गूगल करके देख लीजिए। तालीम एक ऐसा गाना है जो बहुत ही संजीदा गाना है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा मुझे, और रंजू सर ने जब मुझे सुनाया तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अट्रैक्टिव लगा। एंड आई लव द आइडिया ऑफ प्लेइंग अ ब्लाइंड गाय, जो कि इवन दो वो उसको दुखी नहीं दिखा रहे, वो उसको ये दिखा रहे हैं कि एक इंसान जिसकी आंखें नहीं हैं वो भी एक खुली आंखों से अपने सपने देखता है और उन्हें पूरा करना चाहता है। तो फैंटेसी पार्ट जो था मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, एंड स्पेशली आज जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे और भी अच्छा लगा, क्योंकि उसमें जो विजुअल्स उन्होंने दिखाए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। किस तरह की तैयारी करनी पड़ी आपको इस कैरेक्टर? जी, मेन था कि सारी जैसे जो एक ब्लाइंड के एक बॉडी लैंग्वेज जो होता है वो बहुत ज़रूरी था देखना। तो वो यूजली मतलब उसमें ये नहीं है कि हम किसी दुखी इंसान को दिखाएं, तो उसमें ज़्यादा आपने देखा होगा कि जितना भी वो अपनी फिंगर्स की मूवमेंट्स जो है हमने उसी को रखा है, मेंटेन किया है, तो वो जो था वो काफ़ी वर्कआउट किया। इस तरह के कैरेक्टर प्ले करने के लिए आप किसी क्लासेस में गए थे ब्लाइंड के या किसी से मिले थे? जी नहीं, हमारे सेट पे एक लेडी थी, तो उन्हीं से पूरी गाइडेंस मिल रही थी, एंड उन्हीं के साथ में ही कर रहा था मैं। Yeah, I've just finished Arambh and now I'm starting a film. It's called Love in Goa, and ये एक आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है। इसमें मैं हूँ और कृष्णा अभिषेक है, सो पूरा कॉमेडी ड्रामा दिखेगा आपको। थैंक यू सर। पूछिए क्या पूछना है। बताइए डिफरेंट टाइप की जो आपकी एल्बम है जिसमें ब्लाइंड प्ले करा, तो टाइप किस तरीके से आपने डायरेक्ट? मुश्किल तो था क्योंकि मुझे कुछ अनकन्वेंशनल करना था। आई डिडंट वांट टू डू वही स्टीरियोटाइप म्यूज़िक वीडियोस जैसा दिखते हैं वही चलता आ रहा है। तो मैं आई एम अ कोरियोग्राफर, और मैं जब डायरेक्ट करने का चाहत रखा और डायरेक्ट किया हूँ तो मैं चाह रहा था कि कुछ अलग करूँ, कुछ नया करूँ, कुछ नया विजुअल्स प्रेजेंट करूँ। सो मुश्किल था क्योंकि ये पूरा CG और VFX जनरेटेड वीडियो है, इस नॉर्मल वीडियो नहीं है, तो बहुत प्लानिंग और प्रिपरेशन लगता है इसके लिए। काफ़ी काम प्री में किया गया, कुछ तकरीबन 1-1.5 महीना प्री, फिर शूटिंग और फिर पोस्ट में अगेन 3 months। सो या इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू गिव यू दिस। या रजनीश इज़ सच अ वंडरफुल गाय, बहुत स्वीट एक्टर है, बहुत बढ़िया है और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है। ही स्पेंड टाइम विद मी, पूरे वीडियो को समझा, कॉन्सेप्ट को समझा, फिर उसके बाद जो परफॉर्मेंस उसने किया है वो पूरा समझने के बाद ही इज़ परफॉर्म। सो ही इज़ वेरी गुड एंड वेरी 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 कंफर्टेबल टू वर्क विद। डिफ़िकल्टी मतलब आप लोगों ने बाहुबली देखा होगा, तो उसके पीछे काफ़ी समय लग गया वो बनाने के लिए। अब खैर म्यूज़िक वीडियो है, बजट कम होता है, कम बजट में जो आपने सोचा है वो एग्जीक्यूट करना होता है। तो 2 दिन के शूटिंग में मुझे ये पूरा विजुअल शूट करना था। विजुअल शूट करके उसके बाद सारे विजुअल्स जो लगने वाले हैं पीछे ग्रीन स्क्रीन के थ्रू जो दिखाने वाला हूँ मैं, वो प्लानिंग, थिंकिंग, हर एक फ्रेम को वैसे शूट करना। सो या इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट। लाइटिंग मैच करना इतना आसान नहीं होता, ये सब चीज़ें देखने के लिए बहुत इजी है कि आप 4 मिनट का वीडियो देख लिए, ख़त्म हो गया, बट स्पेशली ऐसे वीडियो के पीछे बहुत मेहनत लगता है। सो या एंड कोशिश किया, उम्मीद है कि ऑडियंस को पसंद आए। मैं कोरियोग्राफर था नहीं, मैं अभी भी कोरियोग्राफर हूँ, और डायरेक्शन तो खैर
जनरली क्या होता है, कोरियोग्राफर्स सॉन्ग डायरेक्टर्स होते हैं, तो गाने जो होते हैं कोरियोग्राफर्स ही डायरेक्ट करते हैं, प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो मैं करता आ रहा हूँ। और उसी के साथ फिर म्यूज़िक वीडियो क्या हो जाता है कि म्यूज़िक वीडियो में कोरियोग्राफर डायरेक्टर दोनों के जगह पे एक ही इंसान दोनों चीज़ कर लेगा, वो ज़्यादा इजी हो जाता है, एग्जीक्यूशन भी कंफर्टेबल हो जाता है। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। थैंक यू सो मच। It was very great experience to me. I'm so happy. This is my first album. As you can, मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी ज़्यादा डांसिंग में मैंने मेहनत की है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आए ये। That's it. बहुत ही अच्छा रिएक्शन था एक्चुअली। मुझे इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा लगा। वो एक बहुत ब्यूटीफुल एल्बम है, जैसे कि आपने देखा। दैट्स इट। कास्टिंग आई के ऑडिशन ओनली, दैट्स इट। या दैट्स इट। या आई टेक डांसिंग क्लास स्पेशली। हाँ, 1 month actually. This is Talim. The song is very close to my heart, and I'm really nervous today. Please don't mind. I'm a very honest person. That's why I'm saying I'm honest. Yeah. Okay. Thank you so much.